This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. আরে কম দে কিন্তু খাঁটি দে। MDH কাশ্মীরি লাল লঙ্কার গুঁড়ো। MDH নমস্কার, স্পেশাল লাইনে আজ কি 22 এপ্রিলের পহেলগাঁও জঙ্গি হামলার বদলা নিয়েছে ভারত। গোটা বিশ্ব দেখেছে অপারেশন সিঁদুর কিভাবে পাকিস্তানের কোমর ভেঙে দিয়েছে। পাকিস্তানের 9টি জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে ভারত। 11টি পাক বায়ুসেনা ঘাঁটিতে নিখুঁত স্ট্রাইক। শুধু জঙ্গি বা পাকিস্তানকে জবাব দিয়েই চুপ থাকেনি ভারত। পাকিস্তান থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে উড়ে আসা চীনা ড্রোন তুরস্কের অস্ত্র ধ্বংস করেছে ভারত। গোটা দুনিয়ার সামনে তুলে ধরে চীন তুরস্কের বেহাল দশা। আর সেই সঙ্গে সামনে এসেছে ভারতের প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা শক্তিশালী। বুক ঠুকে বিশ্ববাসীকে বলছে ভারত এখন আত্মনির্ভর। ভারতের সমরাস্ত্রের ভান্ডার থেকে সামনে এসেছে একের পর এক অত্যাধুনিক হাতিয়ার। সীমান্ত রেখা পার না করেই পাকিস্তানের একের পর এক জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে সেনা। কিভাবে সফল ভারতীয় সেনা? সেনার প্রস্তুতি কেন? কিরকম আমাদের আকাশ ঢাল সিস্টেম? সব দেখাবো। একেবারে এলওসিতে পৌঁছে গিয়েছি আমরা। আজকে TV9 স্পেশাল আকাশে ঢাল, পাকিস্তান নাকাল। অপারেশন সিঁদুরের পরই ঝাঁকে ঝাঁকে ড্রোন পাঠায় পাকিস্তান। কিন্তু ভারতের দিকে ধেয়ে আসা চীনা কিংবা তুরস্কের ড্রোন সীমান্ত পেরোতে নিমেষেই ড্রোন ধ্বংস করেছে আকাশ তীর। গোটা বিশ্বের কাছে বার্তা, অপারেশন সিঁদুর শুধু পাকিস্তানের বিরুদ্ধে জয়ে নয়, এটা আত্মনির্ভর ভারতের শক্তি প্রদর্শন। দেখাই আপনাদের, বিগ বলে একটুখানি বোঝাই আপনাদের। আকাশ তীর অটোমেটিক কমান্ড অ্যান্ড কন্ট্রোল সিস্টেম, এবং এখানে যুদ্ধবিমান শত্রুপক্ষের ড্রোন সীমান্ত অতিক্রম করার সঙ্গেই ধ্বংস করে। দেশীয় প্রযুক্তির আকাশ তীরেই নির্ভুল লক্ষ্যভেদ, এবং ভারতের আকাশে ঢুকতেই আকাশ তীরে ধ্বংস পাক ড্রোন। কিভাবে কাজ করেছে এই আকাশ তীর দেখুন। पाकिस्तान द्वारा पूरी तरीके से ड्रोन वाली साजिश ऑपरेशन सिंदूर के बाद रची गई, लेकिन इन सब के बीच हमारी भारतीय सेना ने पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को भी विफल किया। जो तस्वीरों में आप सिस्टम देख रहे हैं ये आकाश तीर हैं। जैसे ही पाकिस्तान द्वारा ड्रोन यहाँ की तरफ भेजने की कोशिश की गई तो यही वो जवान हैं जो लगातार इन इलाकों को मॉनिटर कर रहे थे। पूरी तरीके से हमारा जो रडार सिस्टम था, एयर डिफेंस गन थी, वो पूरी तरीके से एक्टिवेट थी और लगातार वो देखा जा रहा था कि किस लोकेशन पे और कहाँ पर ये ड्रोन जो है वो लोकेट हो रहे हैं, और वहाँ एग्जैक्टली उसी जगह पर लगातार जो अटैक था वो भारतीय सेना की तरफ से ड्रोन पर किया जा रहा था। तो आकाश तीर सिस्टम है, ये एक ऑटोमेटिक कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम है। दुश्मन के जो एयरबोर्न टारगेट्स थे, उसके ड्रोन्स थे या एयरक्राफ्ट थे, वो जब LC क्रॉस करके हमारे AOR में आए तो उस वक्त हमारे आकाश तीर ने बहुत ही अहम भूमिका निभाई, उनको डिटेक्ट करवा के और उनको वेपन को डेजिग्नेट करने में। तो इसके कारण हमने सक्सेसफुली जितने भी ड्रोन और एयरक्राफ्ट एनिमी की साइड से हमारे टेरिटरी में एंटर किए, हमने सभी को निस्तनाबूद किया। यही वो आकाश तीर कमांड सेंटर है जिसके ज़रिए लगातार पूरे आसमान पर निगरानी रखी जा रही थी। देखा जा रहा था कि कहीं दुश्मन का ड्रोन इस इलाके में तो नहीं आता। जब वो सेंट्रली आकाश तीर सिस्टम में आता तो हम ये देखते हैं कि इसमें से फ्रेंडली कौन से हैं और दुश्मन के कौन से एयरक्राफ्ट हैं। जिनको हम होस्टाइल मानते हैं, दुश्मन का मानते हैं, उसके आसपास का जो वेपन सिस्टम हमारा होगा, मिसाइल, गन, कुछ भी हो सकता है, उसको हम एक्टिवेट कर देते हैं कि आपकी तरफ ये टारगेट आ रहा है, जिससे कि एक साथ जो 40 से 50 ड्रोन या उससे भी ज़्यादा ड्रोन जब आते हैं तो हम जब उनको एलोकेट कर देते हैं तो उस समय में हमारे लिए
वो आसानी से हम उसको खात्मा कर सकते हैं। रडार के ज़रिए यहाँ पर पूरी कमांड जो है वो यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी रख रही थी और उसके बाद जो हमारी एयर डिफेंस गन है वो एक्टिवेट की जाती थी और उसी समय जो है पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को भारतीय सेना द्वारा हमारे एयर डिफेंस सिस्टम द्वारा विफल किया जाता था। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। তার মানে দেশীয় অস্ত্র দেশীয় প্রযুক্তিতেই আমরা এখন পাকিস্তানকে একেবারে কুপোকাত করতে পারি। ভারতের বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা কতটা অত্যাধুনিক জানেন? সেনা সূত্রে খবর, পাকিস্তানের বিমান হামলা ভারতীয় বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার মাধ্যমে রিয়েল টাইমে ট্র্যাক করা হয়েছিল। স্বাভাবিকভাবেই লক্ষ্যবস্তুতে পৌঁছানোর আগেই সেগুলিকে ধ্বংস করে দেওয়া হয়। পাকিস্তানের ড্রোন হামলা ঠেকাতে ভারতের আরেক তুন ফায়ার কন্ট্রোল রেডার, আর পাকিস্তানকে জব্দ করতে এই রেডার সিস্টেমের ভূমিকাও ছিল খুব গুরুত্বপূর্ণ। লাইন অফ কন্ট্রোলে রাত দিন অ্যাক্টিভ এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের রেডার প্রথমে দূর থেকেই আকাশপথে শত্রুর অস্ত্র শনাক্ত করে লং রেঞ্জ আর্লি ওয়ার্নিং রেডার, আর সেই সিগন্যাল যায় ফায়ার কন্ট্রোল রেডারে, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাক্টিভেট হয়ে ধ্বংস করে শত্রুর যুদ্ধবিমান থেকে ড্রোন। নিশ্চয়ই দেখতে চাইবেন পাকিস্তানের হামলার সময় এই ফায়ার কন্ট্রোল রেডার কিভাবে কাজ করছে, দেখুন। इस समय अब हम आपको दिखाएंगे फायर कंट्रोल रडार। ये वो रडार है जो जब पाकिस्तान द्वारा ड्रोन भेजे जा रहे थे उसको डिटेक्ट करने के लिए। इस वक्त मैं मौजूद हूँ लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में और अभी भी आप देख सकते हैं कि हमारा रडार सिस्टम किस तरीके से काम कर रहा है। यहाँ पे जवान आप देख सकते हैं, अभी भी जो निगाहें हैं वो आसमान की तरफ है, क्योंकि लगातार लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके में जो चौकसी है वो पूरी तरीके से जवानों द्वारा भरती जा रही है, चाहे दिन हो चाहे रात हो। इसी तरीके से हमारे जो रडार सिस्टम है वो इस वक्त एक्टिव है। लेकिन आकाश तीर जो पूरी तरीके से मेड इन इंडिया है उसने किस तरीके से लाइन ऑफ कंट्रोल या फिर अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके में काम किया, खास तौर पे एयर डिफेंस सिस्टम को लेकर ये बात किसी से छुपी नहीं है। आप मान के चलिए कि पाकिस्तान को पूरी तरीके से नाको चने चबाए हैं भारतीय सेना ने, हमारे पूरी तरीके से भारतीय एयर डिफेंस सिस्टम ने। ये जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं ये रडार सिस्टम है। जैसे ही कमांड कंट्रोल से ये पता लगता है कि इस इलाके में जो ड्रोन है वो हो सकते हैं, ये जो रडार सिस्टम है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट किए जाते हैं। ये देखे जाते हैं कि आखिरकार ड्रोन किस इलाके में है, किस एग्जैक्ट पॉइंट पर है। ठीक पीछे जो रडार आप एक देख रहे हैं वो एक अर्ली वार्निंग रडार है। अर्ली वार्निंग रडार मींस लॉन्ग रेंज अर्ली वार्निंग रडार है, और इस रडार की यही काबिलियत जो है दुश्मन के हर एयरबोर्न टारगेट को लॉन्ग रेंज पर सर्च और डिटेक्ट कर सकती है और उस पर पैनी निगाह रख सकती है। सो दुश्मन का चाहे वो ड्रोन हो, चाहे वो यूएवी हो, चाहे वो एयरक्राफ्ट हो, हर एक एयरबोर्न टारगेट का डाटा इस अर्ली वार्निंग रडार द्वारा सर्च और डिटेक्ट किया जाता है। इस टारगेट के डाटा को हम हमारे कंट्रोल सेंटर के द्वारा FCR रडार, जैसा कि अभी आपने बताया, फायर कंट्रोल रडार को पास किया जाता है, और इस फायर कंट्रोल रडार के साथ में लगे हुए वेपन सिस्टम उस पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाके जिसका रेट ऑफ फायर बहुत ही हाई है उस पर फायर करके उसे हवा में ही बर्बाद करते हैं। भारतीय सेना हमेशा अलर्ट मोड में थी, है और रहेगी। तो ये देखिए, भारतीय सेना हमेशा अलर्ट मोड पर थी, है और रहेगी, और ये दिखाता है कि किस तरीके से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने काम किया और पाकिस्तान की ड्रोन वाली साजिश को पूरी तरीके से विफल किया। और ऑपरेशन सिंदूर में तकरीबन 9 ऐसी लोकेशंस थी जिसको भारतीय सेना ने ध्वस्त किया, और उसके बाद पाकिस्तान बौखला गया, सीज फायर का वायलेशन किया, हमारे सिविलियन इलाकों को टारगेट किया, ड्रोन के जरिए अटैक करने की कोशिश की गई, लेकिन उसमें भी विफल रहा। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। আরও আছে ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের শেষ ধাপ হলো এয়ার ডিফেন্স গান,
জানেন জানেন অমৃতসরের স্বর্ণ মন্দিরের দিকে যখন ঝাঁকে ঝাঁকে ধেয়ে আসছিল পাক ড্রোন মিসাইল, তখন কামাল দেখিয়েছে এই এয়ার ডিফেন্স গান। একের পর এক পাক ড্রোন নিমেষেই ধ্বংস করে দিয়েছে। একবার রেডার সিগন্যাল পাঠালেই গুলি ছুটতে থাকে এয়ার ডিফেন্স গান। নিখুঁত নিশানায় গুলি ছুড়ে ধ্বংস করে শত্রুর ড্রোন থেকে যুদ্ধ বিমান। সীমান্তে মোতায়েন ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেমের ছবি তুলে ধরছে TV9 বাংলা। দেখুন। जिस जगह पर मैं मौजूद हूँ ये लाइन ऑफ कंट्रोल का इलाका है, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन क्या है मैं आपको नहीं बताऊंगा। लेकिन इतना मैं आपको दिखा सकता हूँ कि ये जो गन है इसे बोला जाता है एयर डिफेंस गन। जैसे ही पाकिस्तान कायर पाकिस्तान द्वारा ड्रोन इस इलाके में भेजे गए, चाहे वो जम्मू हो, सांबा हो, अखनूर हो या फिर लाइन ऑफ कंट्रोल के इलाके हो, उसी वक्त पूरी तरीके से हमारे भारतीय सेना की तरफ से, भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर डिफेंस सिस्टम को एक्टिवेट किया गया ताकि पाकिस्तान अपनी किसी भी नापाक साजिश में कामयाब ना हो सके। और इन्हीं गन और रडार की वजह से पाकिस्तान के जितने भी जो ड्रोन थे उनको पूरी तरीके से ध्वस्त किया गया। ये आप तस्वीरों में देख रहे हैं एयर डिफेंस सिस्टम, एयर डिफेंस गन हम आपको दिखा रहे हैं। एयर डिफेंस सिस्टम हमारा जो है पूरा इंटीग्रेट सिस्टम है। ये जो गन आप देख पा रहे हैं, ये गन बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेसी से फायर करता है। इसका रेट ऑफ फायर बहुत हाई है। इस रेट ऑफ फायर से जब ये इसने फायर किया है, इसने सब ड्रोन्स को जो भी हमारे रेंज में आए उनको गिराया। यही नहीं बल्कि ये जो रडार है, ये जो वेपन है, जो गन है, ये रडार के से ट्रैक किया जाता है। तो रडार में जो ट्रैकिंग सिस्टम है ये दिन रात दोनों टाइम पे ये ट्रैक करता है और उम्दा तरीके से इसने काम किया। ये गन्स को दो तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं। रडार से भी कर सकते हैं जो कि एक्टिव ट्रांसमिशन जिसमें किया जाता है, और पैसे से भी कर सकते हैं। यही वो गन है जिसकी वजह से पूरा इलाका जो है एयर डिफेंस सिस्टम जो है वो एक्टिवेट रहा पूरे इलाके में। इसी गन ने पाकिस्तान की इस ड्रोन वाली साजिश को भी नाकाम किया, क्योंकि पाकिस्तान ऑपरेशन सिंदूर के बाद बौखला गया था। ये वो गन है जिसने पूरे इलाके में जो पूरा अम्ब्रेला टाइप है वो बनाया ताकि किसी भी तरीके से ज़ीरो कैजुअल्टी रहे और हमारे इलाके में कोई नुकसान ना हो सके। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए। অপারেশন সিঁদুরে একদিকে ভারতীয় সেনাবাহিনী স্থলে শত্রুকে উপযুক্ত জবাব দিয়েছে, অন্যদিকে ভারতের আকাশে বাহাদুরি দেখিয়েছে বিমান প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা। ভারতের ইন্টিগ্রেটেড এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম এই অভিযানে পাকিস্তানকে চোখে সর্ষের ফুল দেখিয়ে দিয়েছে। পাকিস্তানের প্রতিটি বিমান হামলাকে ব্যর্থ করেছে। সীমান্ত রেখা পার না করেই পাকিস্তানের 9টা জঙ্গি ঘাঁটি গুড়িয়ে দিয়েছে সেনা। কিভাবে সফল ভারতীয় সেনা, আর কি কি হাতিয়ার হাল খারাপ করেছে দেখুন দেখুন তাহলে। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद पूरा देश गुस्से में था। हर कोई चाहता था पाकिस्तान से बदला, पाकिस्तान में बैठे हुए आतंकियों के आकाओं से बदला। और भारतीय सेना, भारतीय वायुसेना और पूरी तरीके से भारतीय नौसेना की तरफ से ये बदला जो है वो लिया गया। इस ऑपरेशन का नाम रखा गया ऑपरेशन सिंदूर। हमारे गन क्रू ने अपनी पोजीशन, गन डाटा और एग्जीक्यूशन की इतनी रिहर्सल कर ली थी कि हमारा हर टारगेट, हमारा हर गोला टारगेट पे एक्यूरेट गिरा है। इसके लिए हमारे पास थे हमारे भारतीय बनाए हुए कुछ मॉडर्न रडार्स और कुछ न्यू जनरेशन टारगेट एक्विजिशन इक्विपमेंट्स, पर सबसे ज़रूरी चीज़ जो थी वो था हमारे जवानों का विश्वास, उनका जज्बा। ये वो गन है, ये वो हथियार है जो भारतीय सेना के पास मौजूद है। और इसी हथियार से लगातार पाकिस्तान के उन इलाकों को टारगेट किया गया। मुझे आज भी याद है
फायरिंग के दौरान एक यंग गनर बोलता है, साहब आपने टारगेट दिया, हमने फायर किया, ज़रा चेक करो दुश्मन का क्या हाल हुआ टारगेट का। ये था उसका जोश। हाँ, दुश्मन ने भी हमारे ऊपर आर्टी शेलिंग की, मगर हमने पूरे काउंटर मेजर्स अपना रखे थे और मैं गर्व के साथ ये कह सकता हूँ कि हमें ज़ीरो कैजुअलिटी उठानी पड़ी। यहाँ अगर इस आर्टिलरी गनों की बात की जाए तो इनकी तकरीबन जो रेंज है अप्रॉक्सीमेटली 30 से 40 किलोमीटर तक की होती है। और ये देखिए, ये वो हथियार है जिस हथियार से भारतीय सेना की तरफ से पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटाई गई। जैसे ही उन्होंने हमारे सिविल एरियाज़ और मिलिट्री इंस्टॉलेशंस को टारगेट करना शुरू किया तो हमने एक चीज़ तो ठान ली कि अब अगर उन्होंने हमारे गांव में गोले गिराए तो उनकी पोस्ट मिट्टी में मिला देंगे। हमारा हर एक गोला उनके लिए एक जवाब था। चाइनीज़ आर्टिलरी का इस्तेमाल जब पाकिस्तान की तरफ से किया गया, लेकिन भारतीय सेना की तरफ से ये वो आर्टिलरी जो है वो यूज़ की गई जब पाकिस्तान की तरफ से सीज फायर का उल्लंघन किया गया और भारतीय सेना ने पाकिस्तान को पूरी तरीके से धूल चटाई। कैमरा पर्सन अनुदीप शर्मा के साथ अंकित भट्ट, TV9 भारतवर्ष के लिए LOC से। দেখলেন ভারতের মজবুত ডিফেন্স করা এয়ার ডিফেন্স সিস্টেম, এটাকেই বলে হচ্ছে আত্মনির্ভর ভারত। আর এ ধরনের যাবতীয় তথ্য জানার জন্য অবশ্যই নজর রাখুন TV9 বাংলায়, সঙ্গে থাকুন। বাহ, এবার হয়েছে স্বাদ। হ্যাঁ, অপূর্ব স্বাদ। MDH এর চাঙ্কি চাট মশলা, জীবনে আসল স্বাদ জাগলো। আসল মশলা, yes yes, MDH।